कहते हैं हार दो तरह की होती है, एक तो हार जाना और एक हार मान लेना। अगर आप हार गए तो जीत सकते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर आपने हार मान ली तो आप नहीं जीत सकते। आप कोशिश नहीं करेंगे, आप स्टेज पे नहीं आएंगे, डरते रहेंगे, तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो बना रहेगा। याद रखना, मैं हमेशा बार बार ये बात बोलता हूं, अगर आप वही करोगे जो कर रहे थे तो लाइफ में आपको वही मिलेगा जो मिल रहा था। अगर आप कुछ नया पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। नया कीजिए, आप आइए स्टेज पे। अब मैं मानता हूं आपकी अभी शुरुआत है, आप हेजिटेशन फील करते हैं, इट्स ओके, लेकिन आप उस चीज को बार बार फील कीजिए। अगर आप हेजिटेशन रिमूव करना चाहते हैं अपना, आप नहीं आएंगे स्टेज पे बार बार तो आपका वो हेजिटेशन बना ही रहेगा। इंग्लिश में कहते भी हैं, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कोई भी हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप हार कोशिश करना बंद नहीं कर देते। ओके, जितने भी इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करो, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, चाहे शाहरुख खान की बात करो, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करो, इन लोगों ने भी लाइफ में बहुत असफलताएं पहले झेली है, उसके बाद उनको सफलता मिली है। एकदम से विनर नहीं बने, छोटी छोटी चीजों से इंसान विनर बनता है। आप आइए, 2 लाइन बोलिए, अगले दिन फिर आइए, 4 लाइन बोलिए, फिर अगले दिन आइए, फिर 8 लाइन बोलिए। इसी तरीके से धीरे 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 आपका एक दिन जो स्टेज फियर है वो निकल जाएगा। अगर आप डरते रहोगे तो मेरा यकीन मानिए आप नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कोशिश करना। ओके, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, उनका यूज करें आप ज्यादा से ज्यादा। तो मैं चाहूंगा आप में से प्लीज कोई आए और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोले। तो प्लीज रेज योर हैंड, हु वांट्स टू कम नाउ? कौन आना चाहता है? फर्स्ट, व्हाट्स योर नेम? Aman Gupta. So first of all, I would like to give the chance to Aman. Please come to the stage and speak whatever you want to speak. Please big applause for Aman. Aman, please come to the stage and speak. Would you like to use mic? Wish you a very lovely good morning to respected sir and my dear friends. I hope you all are fine, doing very well. My name is Aman Gupta, and I reside at Govindpuri at Modinagar. Today I am not giving a speech on motivation. It's not on celebrity, and it's not on big issues of India. My speech is very heart touching because it is on love. But it love is unconditional love of mother. I would like to speak on mother. But before saying anything, I express my gratitude for giving me this chance to come on stage. Now, without wasting any single second, I start. We all have or had in our lives Ma, mother, mom, and amma. The words for the most beautiful soul and sound, similar across the most language, and above similar meaning of love and affection. A mother is a very beautiful word that a child only learns in childhood. My mother is like a God for her child, because God cannot be everywhere, so He made mother for prepare His all the children on the earth. We all can identify her as goddess of multitasking. My mother, how can I explain in some words that she did for me? When I studied in 10th class, my father said to me, you should leave your study because I have no money for your education. But my mother said to me, you should study. I did hard work for your study, and she did. She made a beautician. Today I am an accountant. That's the reason of my mother. When after 12th class, I did many places. I did many places for job where my salary is not so high. I could only earn that I could study, but she did not set to me for money. She wants to me be capable. She always motivates me and put my strength
and does everything as can help me to face the world. I think she is like a strong string who attract the entire family together. She is like a sunshine for me. I love my mother very much. Thank you. Oh my God. Really mind-blowing. Whatever he said about mother, it was really heart-touching. This is really the most beautiful and precious word in the world. If there's any beautiful and precious word in the world, is there, that is only the mom, mother, ma, amma. Really, the way you spoke really touched my heart. I appreciate it, what you spoke. I really love. A few lines for him. कुछ लाइन इनके लिए. दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. मेहनत रंग लाती है या हीना रंग लाती है सिल पे पिस जाने के बाद. Really, so the way he spoke was very nice. मैं चाहूंगा कि आप सभी जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आप सभी कोशिश करें. इन्होंने he has come first time today, आज पहली बार आए हैं, लेकिन अच्छा बोला. आप अगर इसी तरीके से सभी कोशिश करेंगे, यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे. बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली माहौल ऐसा है जिस वजह से वो डरते हैं इंग्लिश बोलने से. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को. इसके बाद फिर मैं किसी और को बुलाऊंगा अपने से स्टेज पे. एक बार एक मुर्गी ने कहीं पर कुछ अंडे दिए. उन अंडों के बीच में एक चील का अंडा कहीं से आ गया. उसने सोचा कि ये मेरा ही अंडा है और उस पे बैठना शुरू कर दिया. कुछ दिनों के बाद उसमें से बच्चा निकलता है. वो चील का बच्चा पाता है कि मैं रंग रूप में एकदम अलग हूं इन मुर्गी के बच्चों से. लेकिन जिस तरीके से जमीन खोद के मुर्गी दाना चुगती थी, उसी तरीके से वो चील का बच्चा भी जमीन खोद के दाना चुगता था. जितने ऊंचे मुर्गी उड़ती थी, उतना ही ऊंचा वो चील का बच्चा भी उड़ता था. एक दिन वो दूर आकाश में चील को उड़ते हुए देखता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है कि काश हम भी ऐसा उड़ पाते. तभी उसके पास कुछ चूजे आते हैं और कहते हैं, क्या देख रहा है? वो कहता है, भाई देखना कितना अच्छा पक्षी है, आकाश छू रहा है, काश हम भी उड़ पाते. बच्चे कहते हैं मुर्गी के, तू चूजा है, अपनी औकात में रह, हमें ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए जिनको हम कभी पूरा नहीं कर सकते. और वो उन चूजों की बात मान लेता है और कभी जिंदगी में उड़ने की कोशिश नहीं करता. पैदा होता है जीने के लिए, लेकिन उनके कहने से अपने आप को तैयार करता है, उनके जैसा ही बना लेता. तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जो है वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ करने की, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने की, लाइफ में कुछ बनने की, लेकिन उनके साथ में जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनका आसपास का माहौल होता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता. जब भी आप कोई नया काम करने की सोचते हैं, आपको कहते हैं, अबे तू मत कर, तेरी बस्ती नहीं है, तू नहीं कर पाएगा. ऑलराइट, तो आप ऐसे लोगों से, जो चूजा टाइप के लोग होते हैं, उनसे बच के रखें. आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आगे बढ़ने की आपको सलाह देते हैं.